हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम टेस्ट नंबर 11 फिजिक्स पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन, जंप इनटू फर्स्ट क्वेश्चन। The escape velocity of from the earth is VE. If the body is projected at an angle of 60 degrees with a vertical, the escape velocity would be, it will be still VE, क्योंकि escape velocity जो है that's independent of angle of projection. Angle of projection पे depend ही नहीं करता है, तो आंसर सेम रहेगा, escape velocity सेम रहेगी. Next one. A driver traveling at 90 km per hour applied the brakes for 5 seconds. If the braking acceleration was 2 meter per second squared, what was her final speed? तो इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, 90 किलोमीटर पर आवर. तो इसको कन्वर्ट कर लें इनटू मीटर पर सेकंड. सो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये बन जाएगा 9 into 2, ये बन जाएगा 9 into 10, ये बन जाएगा 2 into 5. So this is 25 meter per second. Okay, 25 meter per second. और एक्सेलरेशन जो है दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है, सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है विद सम वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u. इसी को आप पॉजिटिव डायरेक्शन कह रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव. ब्रेक लगाई है, दैट मीन स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. ओके, अपोजिट टू दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. तो इसलिए माइनस साइन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. व्हाट वाज हर फाइनल स्पीड? सो टी जो है वो 5 सेकेंड्स के बराबर है यहाँ पर. तो व्हाट वाज हर फाइनल स्पीड वो हमें देखना है. Simple, v is equal to u plus 80. You have all the data. V is equal to u जो है that is 25, यहाँ पर 25 plus a जो है that is -2, t जो है that is 5. 5 into 2 is 10, लेकिन माइनस साइन के साथ 25 minus 10 is 15 meter per second. Velocity is 15 meter per second. So option 1. Okay, option 1. चलिए, let's move on. A ball is thrown at an angle of 45 degrees, so we know angle of projection with the horizontal. It crosses a wall as shown in figure. The height of the wall, if x1 is equal to 3 meters and x2 is equal to 6 meters, is. So यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3 meters हैं x1, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 6 meters हैं, which means range is equal to 3 plus 6 is 9 meters. Okay, range is equal to 9 meters. अब अगर हम इसको यहाँ पर y एक्सिस कहेंगे और इसको x एक्सिस कहेंगे, which is normally the case, तो ये origin यहाँ पर जहां से लॉन्च किया है, तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर है इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x1 y. x1 वहीं से दिया हुआ है तो इसलिए मैंने x1 यूज किया. y जो होगा वो यहां पर होगा, so this is y, which is same as height of this wall जो भी है. So y is same as height of the wall. ये तो हमें निकालना है, h हमने निकालना है. सिंपल, अगर आपको इक्वेशन याद है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद है, then you can find it within a few maybe half a minute. Okay, maybe half a minute. So let's see. इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो हमारे पास है, what did I do? वो हमारे पास है y is equal to x tan theta times 1 minus x divided by r, where r is range. Okay, r is range. तो x के बदले में हम x1 यूज कर लेंगे. Okay, x के बदले में x1 यूज कर लेंगे जो 3 मीटर दिया हुआ है. r भी हमें पता है that is 9. come on, RB दिया हुआ है that is 9 meters. So let me choose an appropriate color. Maybe this one will work. So x का वैल्यू जो है वो 3 meters सब्स्टिट्यूट कर लें. 3 meters. Tan of 45 is 1. 1 minus x जो है वो 3 है. 3 divided by r जो है that is 9. r जो है that is 9. So ये 3 into 3 बन जाएगा 1 minus 1 by 3. So this is 3 into 1 minus 1 by 3,
which is 3 into 3 minus 1 is 2, 2 by 3, 3 and 3 cancels out, so 2 meters. Height of the wall is 2 meters. Okay, height of the wall is 2 meters. Let's move on to the next one now. A ball moving with a velocity of 6 meters per second strikes an identical stationary ball. After collision, each ball moves at an angle of 30 degrees with the original direction. Assuming that the collision is elastic, what are the speeds of the balls after the collision? So there is this ball. It's moving here along this line. यहाँ पर you have one more ball. ये move कर रही है with 6 meters per second. यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर collision हो जाएगा. So one of the balls moves in this direction, the other ball moves in this direction at an angle of 30 degrees with the horizontal. Ye bhi at an angle of 30 degrees with the horizontal. Okay. So now हमें बताया गया है कि what are the speeds? So conservation of momentum. Initial momentum जो है वो इस direction में है, which is m into v, mv. Identical balls हैं तो m into 6. 6 is the speed. Okay, 6 is the speed, which is simply 6 times m. 6 times m. अब यहां पर वेलोसिटी v1 के बराबर लेते हैं, यहां पर वेलोसिटी v2 के बराबर लेते हैं. तो ये वाला कंपोनेंट होगा v1 cos 30, ये वाला कंपोनेंट होगा v1 sin 30. नीचे वाले v2 का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लेते हैं. ओके, x2 का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लेते हैं. लेट मी चूज द वन. So this is v2 cos 30 और नीचे v2 sin 30. Okay, v2 sin 30. अब मोमेंटम जो है, मोमेंटम के लिए सिंपली मास से मल्टीप्लाई करना है. तो मोमेंटम इज mv1, यहां पर बन जाएगा mv1 sin 30, यहां पर बन जाएगा mv1 cos 30. Just m. Okay, so mv1 cos 30, यहां पर बन जाएगा mv2 cos 30, यहां पर बन जाएगा mv2 cos sin 30. So मास से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर बन जाएगा mv2, मास से मल्टीप्लाई करना है, you get the momentum. इनिशियली y डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं है, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस. इनिशियल मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू 0 अलोंग y एक्सिस. इनिशियल मोमेंटम खाली x एक्सिस के अलोंग है, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इज 0. तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये और ये जो है ये सेम होने चाहिए. अपोजिट डायरेक्शन तो है ही, तभी जाके कैंसिल आउट होंगे. सो mv1 sin 30 must be equal to mv2 sin 30. m and m cancels out, sin 30 cancels out, तो v1 is equal to v2. v1 is equal to v2. अगर आप लोगों की सफिशिएंट प्रैक्टिस हुई तो ये आपको पहले ही पता होगा. इस पर्टिकुलर केस में 30 डिग्री जब भी आप देखेंगे ये एंगल सेम है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि v1 और v2 जो है वो सेम है. अब y कंपोनेंट्स हमें पता चला v1 और v2 सेम है. अब x कंपोनेंट्स को रिलेट करते हैं. ओके, x मैं यहां पर लिखता हूं v1 इज इक्वल टू v2, बाकी मैं यहां पर इरेज कर लूंगा. ओके, now x component of momentum before collision must be equal to x component of momentum after collision. Okay, x component before collision is equal to x component after collision. So final momentum का x component must be equal to initial momentum का x component. Final momentum का x component ये दो है, same direction में है तो add कर लेंगे. तो अब remember v1 और v2 same है. Let's write v for that. Okay, let's write v for that. तो ये बन जाएगा mv cos 30 और दूसरा वाला भी mv cos 30, तो बन जाएगा twice mv cos 30 is equal to p1 x जो है, x component जो है initial momentum, that is 6m. m and m cancels out, 2 into 3. So v into cos of 30 is root 3 by 2 is equal to 3. This implies v is equal to 3 into 2 divided by root 3. 3 by root 3 is root 3, so 2 root 3 meter per second.
So this is the velocity of both the particles after collision. Okay, this is the velocity of both the particles after collision. Option 3, 2 root 3, 2 root 3. Option 3, 2 root 3, 2 root 3. Is that fine? So this was question number 4, option 3. Let's move on to question number 5. A motor car is moving with speed 10 root 10 meter per second on a circular path of radius 500 meters. Its speed is increasing at the rate of 2 meter per second squared. What will be the resultant acceleration? तो ये कोई पार्टिकल है मूविंग अलोंग दिस सर्कल, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी के वजह से ये v जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, इसके वजह से टेन स्पीड इंक्रीज होगी। ओके, इसके वजह से स्पीड इंक्रीज होगी और इसके पास होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, इसके पास होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। नाउ टोटल एक्सेलरेशन जो है वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ओके, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। फिर से ध्यान दें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा, व्हिच इन दिस केस इज इंक्रीजिंग। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले देखते हैं कि किसके बराबर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। v जो है वो 10 रूट 10 है, सो 10 रूट 10 लेकिन स्क्वायर के साथ डिवाइडेड बाय r जो है दैट इज 500। So 500 ऊपर बन जाएगा 10 स्क्वायर इज 100 इंटू रूट 10 का स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो खाली 10 बच गया, डिवाइडेड बाय 500। यहाँ पर 2 जीरोस कैंसिल होंगे, 5 इंटू 2, तो वो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये AC अलोंग द रेडियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगी वो यहां पर होगी A, और A किसके बराबर होगा? सिंपली अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। Now this is अंडर रूट ऑफ, दोनों 2 के बराबर है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस 2 स्क्वायर। स्क्वायर जिसके साथ है उसका स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट। ओके, उसका स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो वो 2 बच जाएगा और रूट 2 साथ में, इसका स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट और ये 2 जो है वो वहीं पर रहेगा। सो 2 रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2। चलिए, let's move on to the next one, question number 6. A motor car is moving with a speed of, is it the same one? Speed is in, what is the result? Oh. A motor car is moving with a speed of, okay, ये repeat हुआ है, fine, ये repeat हुआ है, so let it be, गलती से हुआ होगा। If V is the gravitational potential on the surface of Earth, then what will be the value at the center of Earth? At the center of Earth, एक यूनिफॉर्म स्फीयर जिसका रेडियस r है और मास m है, पोटेंशियल जो होता है इनसाइड, दैट इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ओके, पोटेंशियल ऑन द सरफेस टाइम्स 3/2 minus r square by capital R square, where r is distance from the center और capital R जो है that is radius। अब सेंटर के लिए at center r जो है that is equal to 0, तो v at the center is equal to vs times 3/2 minus 0। अब 3/2 जो है that is 1.5, तो 1.5 times potential on the surface। अब potential on the surface को v से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, so this is simply 1.5 times v, 1.5 times v। या 3/2 ऐसे, इसने 3/2 ऐसे रखा है, 1.5 नहीं लिखा है, 3/2 times v, so option 3। okay, option 3। Then we have, I think 6 question मिस हुआ है यहाँ पर, 6 question में गड़बड़ हुआ है।
that is regarding acceleration due to gravity. Yeah, that is regarding acceleration due to gravity. खैर उसमें आंसर जो है acceleration on the planet is 3 times acceleration on the surface of Earth. Okay, on the surface of Earth. आपसे कहा गया है उसमें कि I can read it out here. आपसे कहा गया है कि उसमें डेंसिटी जो है वो सेम है as that of Earth, लेकिन उसका रेडियस जो है, उसका साइज जो है, that is 3 times. 3 times. In terms of density, अगर आप acceleration due to gravity लिखेंगे, that is 4/3 g pi rho r. So g is directly proportional to r. So gp of the planet divided by g of the earth is equal to r of the planet divided by r of the earth. R of the planet is 3 times that of earth, तो ये ratio 3 बन जाएगा. तो वहीं से gp is equal 3 times ge. Okay. So this is question number 7 basically, जो यहाँ पर मिस हुआ है, इन्होंने यहाँ पर गलती से हुआ है. Okay, then 7b आ गया. Let's move on to the 8th one. Okay, let's move on to the 8th one. A particle starts with initial speed of 17 meter per second and retards at 2 meter per second. Again, retards हैं, तो acceleration की direction is opposite to that of initial velocity. What is the distance covered in the 9th second of motion? Okay, what is the distance covered in the 9th second of motion? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. इसमें पहले ये चेक करें कि कहीं स्पीड जो है वो 9 सेकंड से पहले ही 0 तो नहीं बन रही है. तो हमें पता है u is equal to 17, a is equal to -2, ये -2 रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव, और v मैं देखता हूं 0 कब बनेगा, फाइनल वेलोसिटी कब 0 बनेगी, एट व्हाट टाइम विल इट बिकम 0. वो देखते हैं कि 9 सेकंड के बाद 0 बनता है कि 9 सेकंड से पहले ही 0 बनता है, क्योंकि उससे जो है आंसर जो है इफेक्ट हो जाएगा. तो अगेन v इज इक्वल टू u प्लस at. सो v इज 0, u इज 17, इसे लेकिन यहां लाते हैं तो -17 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. a इज -2 t and t will cancel out, so minus and minus will cancel out. So t is equal to 17 divided by 2, 2 into 8, 16.5. So 8.5 seconds पे रुक रहा है. 8.5 seconds पे रुक रहा है. 9th second का मतलब है from 8 to 9. 8 second to 9 second. 8 second to 9 second. So इस पूरे सेकंड में ये जो है इसकी मोशन आइडेंटिकल नहीं रह रही है. इसकी मोशन जो है उसकी एक्सेलरेशन -2 नहीं रह रही है. अब again there is a tricky thing here. Okay, again there is a tricky thing here. Suppose ये पार्टिकल यहां पर है, या गाड़ी जो भी है, पार्टिकल यहां पर है 8 सेकेंड्स पे यहां पर, और 8.5 पे यहां पर आ गया 8.5 सेकेंड्स पे, और इस दौरान इसकी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन थ्रू आउट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. वेलोसिटी जो थी वो इस डायरेक्शन में थी, राइट डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है. अब यहां पर स्टॉप होने के बाद क्या ये एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहेगी? दो केसेस जहन में लाइए. एक तो आप किसी पार्टिकल को ऊपर भेज रहे हैं और उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, तो जब वो टॉप पे पहुंच जाता है उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन जी तब भी है, और उसके वजह से फिर वो वापस आ जाता है, उसके वजह से वापस आ जाता है. तो यहां पर रुकने के बाद यहां पर स्पीड जो है वो 0 बन रही है. तो रुकने के बाद अगर ये कंटिन्यू रह रहा है तो पार्टिकल जो है वो वापस घूम के आएगा. सो 8 to 8.5 वो यहां मूव कर लेगा, लेकिन 8.5 के बाद वो वापस मूव कर लेगा अगर ये एक्सेलरेशन जो है ए जो है वो कंटिन्यू रहा. लेकिन दूसरा केस आप जहन में लाइए कि आपके पास गाड़ी है, गाड़ी यहां मूव कर रही है, आपने ब्रेक लगा दी तो एक्सेलरेशन पीछे है. अब गाड़ी जो है कुछ देर के बाद यहां पर रुक रही है, वेलोसिटी 0 बन गई, लेकिन उसके बाद ये एक्सेलरेशन भी खत्म होती है. वो फोर्स जो है वो कंटिन्यू नहीं रहता है, ब्रेकिंग वाला फोर्स जो वो भी खत्म होता है, तो एक्सेलरेशन डज नॉट कंटिन्यू. सो गाड़ी रुक गई तो रुक गई, अब उसके बाद फर्दर कोई मोशन नहीं होगी. तो ये दो चीजें हैं. So this is the tricky part, and I would say I don't agree with the language of the question. लैंग्वेज जो है वो आपको रिटार्ड्स कह रही है, यानी कि स्पीड कम हो रही है. तो मेरी आर्गुमेंट होगी कि ये यहीं पर रुक रहा है, बस
ये एक्सेलरेशन कंटिन्यू नहीं रहेगी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह कंटिन्यू नहीं रहेगी, गाड़ी की तरह गाड़ी रुक गई तो एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने इसको भी कंसिडर किया है कि ये एक्सेलरेशन जो है इट कंटिन्यूज टू बी देयर। ओके, एक्सेलरेशन जो है इट कंटिन्यूज टू बी देयर, उस हिसाब से आंसर की में को आंसर दिया गया है, तो मैं वही कर लूंगा। लेकिन आई वुड से कि यहां पर पहुंच गया, रुक गया, एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस वर्ड रिटार्डेशन है, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड रिटार्डेशन है। खैर, अब हम इसी के हिसाब से जाएंगे जिस हिसाब से की में आंसर दिया गया है, तो लेट्स मूव ऑन विद दैट ताकि आपके समझ में आ जाए। तो अगर आपका ये होगा कि रिटार्ड कर रहा है, बस यहां पर रुक जाएगा, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम 8 to 8.5, क्योंकि पूरा 9 तक ये मूव ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे कि एक्सेलरेशन कंटिन्यू रह रही है और ये वापस भी आ रहा है, तो पहले आप 8 to 8.5 निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, फिर वापस 8.5 to 9 सेकेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप निकाल देंगे। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप निकाल देंगे। सो व्हाट वी विल डू हियर इज हम 8 to 8.5 वाला जो है पहले अलग से कंसिडर कर लेंगे, और फिर जाके 8.5 to 9 जो है वो अलग से कंसिडर कर लेंगे। So let me erase. Oh, what happened? Let me erase some of the stuff here. So 8 to 8.5 हम कंसिडर कर लेते हैं। ओके, 8 to 8.5 हम कंसिडर कर लेते हैं। At 8 seconds, okay, at 8 seconds, v देखते हैं कि किसके बराबर है, वेलोसिटी देखते हैं किसके बराबर है। हमें रिमेंबर करना है फ्रॉम 8 to 8.5, तो 8 वाली जो है वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी इस इंटरवल में, और 8.5 वाली जो है वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। सो हम यहाँ पर करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस 80, फिलहाल हम 0 to 8 ले रहे हैं। ओके, 0 to 8 ले रहे हैं, फिर जाके 8 यहाँ पर इनिशियल बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू u जो है वो 17 है, a जो है वो -2 हमें लेना है क्योंकि रिटार्डेशन है, -2, और t जो है वो 8 है। 8 into 2 is 16, 17 minus 1, 17 minus 16 is 1 meter per second, 1 meter per second। तो 8 सेकेंड्स पे वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, और 8.5 पे वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि गाड़ी जो है, पार्टिकल जो है वहां पर रेस्ट पे आ गया है। ओके, वहां पर रेस्ट पे आ गया। अब we have this data 8 to 8.5, 8 to 8.5। तो इसमें इस इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी बन रही है 1 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल मतलब 8 सेकेंड्स पे, फाइनल वेलोसिटी बन रही है 0, एक्सेलरेशन वही है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और टाइम टेकन जो है दैट इज 1/2 सेकेंड्स। 8 to 8.5 आधा सेकेंड बन रहा है। ओके, आधा सेकेंड बन रहा है। तो अब यूज कर लें, हमें रिमेंबर s चाहिए। ओके, वी नीड s, so let's write v square minus u square is equal to 2as। v के बदले में 0, माइनस u के बदले में 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a के बदले में -2 और s। ओके, ये माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, तो s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 मीटर्स, 0.25 मीटर्स, 0.2, 8 to 8.5। तो अगर आप ये एज्यूम कर लेंगे कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ गया, तो ये एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का काम है स्पीड को कम कर लेना, स्पीड को खत्म कर दिया तो इसका काम खत्म हो गया, तो ये भी खुद खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर फिर 3 आएगा, ऑप्शन 3 आएगा। लेकिन आपकी जो की है उसमें आंसर 0.25 नहीं है, उसमें आंसर 0.5 है। वो कैसे? वो ये इस हिसाब से 8 सेकेंड पे यहां पर है, 8.5 सेकेंड्स पे यहां पर है,
एक्सेलरेशन यहां थी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन रुकने के बाद यहां पर वेलोसिटी जीरो बन गई, यहां पर वेलोसिटी जीरो बन गई, तो रुकने के बाद ये एक्सेलरेशन कंटिन्यूज टू बी देयर, जिसकी वजह से वापस आता है और 9 सेकंड पे एग्जैक्टली यहां पर वापस आएगा, तो फिर से इतना ही चलेगा सिमेट्री की वजह से। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस from S from 8 seconds to 9 seconds will be double of this, which is 0.5 meter. सिमेट्री की वजह से आप देख सकते हैं कि वापसी वाला जो है वो भी 0.25 ही होगा, तो टोटल इज 0.5 seconds, 0.5 सेकेंड। एज ए सेड कि मेरे हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर 3 है, क्योंकि रिटार्डेशन में स्पीड 0 बन जाएगी तो एक्सेलरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Okay, Irshad Sub wants to cross the river in minimum possible time, and he can swim with a velocity 4 meter per second in water. In water का मतलब still water. Okay, ये बात understood यहाँ पर रहेगी. This is still water. That means with respect to water. Okay, still water का मतलब with respect to water. If the width of the river is 200 meters, the river velocity is 3 meter per second, then drift is, ये हमारे पास कोई स्विमर है, मिनिमम टाइम अगर लगाना है, मिनिमम पॉसिबल टाइम, मिनिमम पॉसिबल टाइम अगर लगाना है तो स्विमर को हाथ पैर इस डायरेक्शन में मारने हैं, डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर। ओके, डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर। ये होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड है। अब इसके बाद इसके पास रेडीमेड वेलोसिटी जो आ रही है, विच इज बिकॉज ऑफ द रिवर फ्लो, वो इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी इन दो की, वो ये होगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्विमर जो है एक्चुअली इस डायरेक्शन में मूव कर लेगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाथ पैर तो वो इस डायरेक्शन में मार रहा था, तो दिस इज द ड्रिफ्ट, दिस इज द ड्रिफ्ट एक्स। तो सिंपल हम इसको एक्स एक्सिस मान के चलेंगे, इसको वाई एक्सिस मान के चलेंगे। वाई मोशन को कंसिडर करके, ये वेलोसिटी की वजह से क्रॉस कर रहा है, वाई मोशन को कंसिडर करके हम टाइम निकालेंगे, फिर एक्स मोशन में उसे यूज करके एक्स निकालेंगे, ड्रिफ्ट निकालेंगे। और विड्थ ऑफ द रिवर जो है दैट इज 200 मीटर्स, 200 मीटर्स। वाई डायरेक्शन, वाई मोशन कंसिडर कर लें, विच इज अक्रॉस द रिवर। ओके, डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर। वेलोसिटी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वाली वेलोसिटी वो है 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज 200 meters. Time taken will be, remember speed is equal to distance by time, so time is equal to distance divided by speed, which is 200 divided by 4. This is 5 into 4 is 20, 50 seconds. तो 50 seconds में ये रिवर को क्रॉस कर लेगा, which is the minimum possible time for this swimmer. Okay, minimum possible time. अब जाके हमें ड्रिफ्ट देखना है कि किसके बराबर है। अब टाइम फैक्टर जो है वो चाहे आप वाई मोशन कंसिडर कर लें या एक्स मोशन कंसिडर कर लें, टाइम फैक्टर जो है वो सेम रहेगा, टाइम फैक्टर सेम रहेगा। तो अब एक्स मोशन कंसिडर कर लें। एक्स मोशन में डिस्टेंस जो है वो एक्स है, जो हमें निकालना है, ये यहाँ पर एक्स, यही तो हमें निकालना है। स्पीड जो एक्स डायरेक्शन में है दैट इज दिस स्पीड, जो रेडीमेड वेलोसिटी मिल रही है स्विमर को वाटर की वजह से, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन हमने पहले ही देखा, यहां से 50 सेकेंड्स हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 3 into 50 इज इक्वल 150 meters. So ये ड्रिफ्ट जो हो रहा है, this is 150 meters. 150 meters is option 1. Okay, option 1. Let's move on. Let's move on. Out of the following quantities, which one has dimensions different from the remaining three? Different from the remaining three. Angle is dimensionless, relative density is dimensionless, refractive index is dimensionless, density के dimensions है, mass per unit volume है, so this is the one which is different. Density is the one which is different, तो इसका आंसर यही रहेगा, बाकी dimensionless है। 11. Velocity of water waves may depend on their wavelength lambda,
velocity, density of water rho, and acceleration due to gravity. The method of dimensions gives relation between these quantities as. तो velocity of water wave v आपसे कहा गया है depends on lambda, rho and g. तो आपको पता होना चाहिए, हम इसको ऐसे लिखते हैं डिमेंशन एनालिसिस में, लैम्डा पावर a, रो पावर b और g पावर c, या प्रोपोर्शनैलिटी के बदले में आप इक्वालिटी लगा सकते हैं, लैम्डा पावर a, रो पावर b और g पावर c. लेकिन इस k के बारे में ध्यान में रखें, इट्स डिमेंशनलेस. ओके, इट्स डिमेंशनलेस. डिमेंशन सब्स्टिट्यूट कर लें, डिमेंशन सब्स्टिट्यूट कर लें. आई एम श्योर ये आप सबको आया होगा. वेलोसिटी के डिमेंशंस L1 T माइनस 1, के तो डिमेंशन लेस है तो छोटे. वेवलेंथ इज लेंथ, तो L1, लेकिन ऊपर पावर A है, ऊपर पावर A है. रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास M1 पर यूनिट वॉल्यूम L माइनस 3, लेकिन ऊपर डेंसिटी का पावर B है तो MB L3B बन जाएगा, माइनस 3B. देन एक्सेलरेशन, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन का L1 T माइनस 2, T माइनस 2, लेकिन पावर C है तो ये बन जाएगा LC T माइनस C, माइनस 2C. So this implies L1 T minus 1 is equal to MB. L bases are same, powers are added. A minus 3B plus C. A minus 3B plus C. फिर जाके T is, T का पावर जो है वो T to the power minus 2 by C. अब डिमेंशंस को कंपेयर कर लें. लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मास है ही नहीं. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में मास है ही नहीं. दैट मींस B is equal to 0. So B is equal to 0. पहला आपका आ गया. अब पहले T का कंसिडर कर लें. 2C माइनस 2C यहां से, माइनस 1 यहां से, तो माइनस 2C is equal to माइनस 1. माइनस एंड माइनस goes to dog. So C is equal to 1 divided by 2. C is equal to 1 divided by 2. अब लेंथ का कंपेयर कर लें. लेंथ का राइट हैंड साइड में है A minus 3B plus C is equal, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है. So this is A minus B तो 0 के बराबर है, तो 0 plus C जो है वो 1 by 2 के बराबर है, is equal to 1. This implies A is equal to, ये 1 by 2 को दूसरे साइड से लेते हैं, minus 1 by 2 बन जाएगा. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. तो A का वैल्यू 1 by 2 आ रहा है, B का वैल्यू 0 आ रहा है, और C का वैल्यू जो है वो भी 1 by 2 के बराबर आ रहा है. Then what is the equation? तो V is equal to K, lambda power A तो है 1 by 2, lambda power 1 by 2. Then we have rho power B तो 0 के बराबर है, rho power 0. Then we have G power C तो 1 by 2 के बराबर है, तो 1 by 2. So this implies V is equal to K lambda और G दोनों का रूट है, पावर 1 by 2 का मतलब रूट. Yeah, you can square on both sides. This implies V square is equal to K square lambda G. K square is just another constant. K prime lambda G. K prime lambda G. So V square is equal to K lambda G. Constant, कोई भी constant जिससे भी आप represent कर ले, into lambda G. Option 2. V square is equal to K into G lambda. G lambda या lambda G एक ही बात है. Okay, so this is question number 11, option 2. Let's move on. Question number 12. An automobile traveling with a speed of 60 km per hour can brake to a stop within a distance of 20 meters. So stopping distance 20 meters के बराबर है. If the car is going twice as fast, that is 120 km per hour, the stopping distance will be. नई stopping distance हमें बतानी है कि किसके बराबर है. Stopping distance आपको पता होना चाहिए कि is U square divided by 2A. U square divided by 2A. यहाँ पर दूसरे केस में स्पीड जो है वो ट्वाइस है, इनिशियल स्पीड ट्वाइस है. एक्सेलरेशन जो है वो सेम है दोनों केसेस में, ब्रेक दोनों लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम है. तो वी कैन राइट S is directly proportional to U square. This means S2 divided by S1 is equal to U2 divided by U1 common square. So this implies S2 divided by S1 जो है that is 20 meters पहले वाले केस में,
is equal to u2 आपसे कहा गया is twice u1, so twice u1 divided by u1 square. u1 cancels out, 2 square is 4, so this implies s2 is equal 20 को ऊपर लेते हैं, that is 80. 20 into 4 is 80 meters. 80 meters, option 4. Option 4. That is question number 12. Now let's move on to question number 13. Figure shows the displacement time graph of two cars A and B. The ratio of their velocities is displacement time graph में velocity जो है that is given by the slope. Velocity is slope और slope जो है that is tan of theta और theta जो है that is angle with x direction. Okay, x axis के साथ जो angle है, यहाँ पर time axis के साथ जो angle है. तो A केस में आप देख सकते हैं कि A के केस में वो एंगल तो 30 डिग्रीज है और B के केस में वो एंगल ये 30 है, तो ये 60 डिग्री होगा. तो A वाला ग्राफ जो है वो 30 डिग्रीज बना रहा है, B वाला ग्राफ जो है वो 60 डिग्रीज जो है वो बना रहा है. तो वेलोसिटी, so velocity is given by the slope, simply tan of theta. So velocity in case of A divided by velocity in case of B is equal to tan of 30 divided by tan of 60 degrees. Okay, tan of 30 divided by tan of 60 degrees. Tan of 30 is 1 by root 3 divided by tan of 60 is root 3. So this is 1 divided by 3. So आपका आंसर आएगा 1:3. Option 2. Option 2. Let's move on to question number 14. Okay. Question number 14. A chain is held on a frictionless table with 1/3 of its length hanging over the edge. If the chain has length L and mass M, how much work is required to pull the hanging part on the table? So this is a table. We have a chain on top of it with some bit of it hanging, 1/3 of it hanging. ये chain है. इसका hanging part जो है वो 1/3 है, so L divided by 3. तो इसका mass भी होगा M divided by 3. Total mass divided by M 3. Center of mass hanging part का, सिर्फ hanging part का center of mass यहाँ पर होगा, तो वो मिड पॉइंट पे होगा, विच इज L डिवाइडेड बाय 6. L by 3 लेंथ है, तो ये L डिवाइडेड बाय 6 होगा. तो जब आप इस चेन को ऊपर लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास जो है उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है बाय L डिवाइडेड बाय 6, तो उसकी पोटेंशियल इंक्रीज होगी बाय mgl. सो वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh. तो किस मास को आप ऊपर ले रहे हैं? m/3 into g. h कितना है? L divided by 6. L divided by 6. So this is mgl divided by 6 into 3 is 18. mgl divided by 18. Okay, mgl divided by 18. Let's move on to the next one. At height h equal to 320 meters above the surface of Earth, how much will be the percentage change in acceleration due to gravity? Okay, in acceleration due to gravity. Okay, height जो है you can see is very small in comparison to radius of Earth. Radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 6 meters, which is 6400 kilometers. 6400 kilometers है और यहाँ पर just 320 meters है. तो हम approximation use कर सकते हैं. GH is equal to GS times 1 minus 2H divided by R. ये approximation हम use कर सकते हैं. Okay, ये approximation. This implies GH divided by GS is equal to 1 minus 2H divided by R. This implies GH divided by GS. GH is acceleration due to gravity at height H. GS is acceleration due to gravity on Earth's surface या कोई भी planet surface. इस मान को यहाँ लेते हैं तो -1 बन जाएगा is equal to minus 2H divided by R. Okay, minus 2H divided by R. So this implies, यहाँ पर cross कर लें, GH minus GS divided by GS is equal to minus 2H divided by R. Negative sign just shows you कि acceleration due to gravity जो है वो decrease हो गई है,
तो ये ऊपर जो है दैट इज डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी एस, इसका मैग्नीट्यूड मैं अब खाली ले रहा हूं तो माइनस साइन को नहीं लेंगे, 2 इंटू हाइट जो है दैट इज 320 डिवाइडेड बाय आर जो है दैट 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, 10 टू द पावर 6 मीटर्स। अब ये आप वर्कआउट कर लें, ये आ रहा है 10 टू द पावर -4, तो परसेंटेज में हम इसे लिखेंगे 10 टू द पावर -4 इंटू 100%। तो ये 100 का मतलब है 10 टू द पावर 2, वो बन जाएगा 10 टू द पावर -2%, 10 टू द पावर -2%, which is 0.01%. 0.01% is option 1. Okay, is option 1. Let's move on to the next one now. Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is inversely proportional to r to the power 5/2, then the square of the time period is proportional to. So gravitational force जो है that is equal to some constant divided by r to the power 5/2. r to the power 5/2 inversely है r to the power 5. So this is some alien universe. ओके जिसमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस हिसाब से वेरी कर रहा है। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो दिस मस्ट बी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके एम आर ओमेगा स्क्वायर। So k is some constant. Okay, k is some constant. So this implies k is equal to m r, यहाँ पर r to the power 1 है और यहाँ से r to the power 5/2 को ऊपर लेते हैं, so r to the power 5/2, और ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा के बदले में आ रहा है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी विद द स्क्वायर, विद द स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज, यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज k is equal to m, bases are same, powers are added, r का पावर 1, r का पावर 5/2, so 1 plus 5/2, 2 plus 5 is 7, 7/2, 2 square is 4, pi square divided by t square. t square को यहाँ ऊपर लाते हैं, k को नीचे लाते हैं, so this implies t square is equal to m 4 pi square m, ये m ये 4 pi square divided by k जिसे हमने नीचे लाया, और साथ में है r to the power 7/2। अब ये सारा कांस्टेंट है, that means t square is proportional to r to the power 7/2, और t square is proportional to r to the power 3.5. 7/2 is 3.5. So ये देखें option number 4. Okay, option number 4. Let's move on to the next one. If a body moves with a constant speed in a circle, no work is done on it. ये तो ठीक है क्योंकि work done हमें पता है is change in kinetic energy. अगर work होता तो kinetic energy change होती, लेकिन speed जो है वो constant है, that means kinetic energy जो है वो भी constant है, वो भी constant है। No force acting on it, नहीं, centripetal force तो होता है, centripetal force is there mr omega square या mv square बार। No acceleration is produced, नहीं, centripetal acceleration तो होती है, so ये भी गलत है। Its velocity remains constant, velocity नहीं, speed remains constant, velocity तो change होती है, यहाँ इस direction में, यहाँ इस direction में, यहाँ इस direction में, यहाँ इस direction में। हाँ, magnitude of velocity remains constant, that is speed, velocity does not, क्योंकि direction change हो रही है। The only option is work is not done. अब अगर force है तो work क्यों नहीं होता है? The reason is वो force centripetal force है और वो velocity को perpendicular होता है। Okay, velocity को perpendicular होता है, और remember cos of 90 जो है वो 0 के बराबर है, तो work done is 0. Question number 18. If for two vectors a and b, sum a plus b is perpendicular to the difference a minus b, the ratio of their magnitudes is, remember parallelogram law में आपके पास अगर एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, तो ये ऊपर a, ये b, तो resultant which is addition of the two, okay, addition of the two वो ये वाला diagonal होता है, addition of the two, this is r vector equal to a plus b
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कैपिटल या स्मॉल व्हाटएवर। और दूसरा डायगोनल जो होता है दैट्स आर प्राइम इक्वल टू ए माइनस बी, वो होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट होता है। सो एक डायगोनल एडिशन का रिजल्टेंट होता है, दूसरा डायगोनल जो है वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट होता है। आपको कहा गया है उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, नहीं वो जो दो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नो मैग्नीट्यूड नहीं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दो डायगोनल्स कब परपेंडिकुलर होते हैं? इन केस ऑफ ए स्क्वायर एंड इन केस ऑफ ए रोम्बस। दोनों केसेस में साइड्स आर परपेंडिकुलर, दोनों केसेस में साइड्स आर सेम, साइड्स आर सेम। स्क्वायर है तो ये ए बी जो है वो सेम होगा, रोम्बस है तो ये ए ये बी जो है वो सेम होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो उनका रेशियो जो है वो सिंपली 1 हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी is equal to 1, तो ये option 1, 18, option 1. 19. For a body projected from a ground at an angle theta with a horizontal, the graph shown the quantity y in the graph is, जो भी quantity है graph में, okay, जो भी quantity है graph में, it remains constant with time, ये change नहीं हो रही है, okay, ये change नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है अगेन क्योंकि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमें क्या बताना है? ये कांस्टेंट चीज कौन होगी जो यहाँ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। लीनियर मोमेंटम चेंजेस क्योंकि वेलोसिटी चेंजेस, तो ये भी नहीं होगा। द ओनली वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, दैट रिमेन सेम। लेट्स मूव ऑन टू 20. A body is projected from the ground in two different directions with equal speeds in both cases it hits the ground at the same point. Then R is where H1 and H2 are maximum heights due in the two cases. दोनों का रेंज जो है वो सेम होगा, ओके, दोनों का रेंज जो है वो सेम होगा। हाइट और रेंज के बीच में जरा याद करें फॉर्मूला, H is equal to R divided by 4 tan of theta। डायग्राम भी जहन में लाइए, एक प्रोजेक्टाइल ऐसे है, दूसरा प्रोजेक्टाइल ऐसे है। एक हाइट h1 गेन कर रहा है, दूसरा हाइट h2 गेन कर रहा है। एक का एंगल थीटा 1 है, दूसरे का एंगल, या एक का एंगल थीटा होता है, दूसरे का एंगल होता है 90 माइनस थीटा। ये कुछ बात है। सो यहां से अब इस इक्वेशन से r जो है दैट इज इक्वल टू 4h इंटू tan ऑफ थीटा, 4h इंटू tan ऑफ थीटा। दूसरा आर, दूसरे वाले केस में आर तो सेम ही है, दोनों केसेस में आर तो सेम ही है, तो यहां पर मैं लिखता हूं h1। दूसरे वाले केस में इट इज 4 टाइम्स h2 tan ऑफ थीटा के बदले में π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा व्हिच इज बेसिकली cot थीटा। सो r इज इक्वल 4 टाइम्स h2 cot थीटा। इक्वेशन 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम क्योंकि रेंज जो है वो सेम, ओके, रेंज जो है वो सेम है। तो 1 and 2 implies 4 times h1 tan of theta is equal to 4 times h2 cot of theta। 4 and 4 cancels out। cot theta के बदले में we can write 1 by tan theta, so ये h1 tan theta is equal to h2 divided by tan theta। cot के बदले में 1 by tan theta, so tan theta ऊपर बन जाएगा tan square theta is equal to h2 ओके। हमें r निकालना है, सो आई हैव डन इट रॉन्ग हियर। हमें r निकालना है तो r को एलिमिनेट नहीं करना है, ओके, r को एलिमिनेट नहीं करना है। r को अगर बाहर निकाल देंगे तो r कैसे मिलेगा? हमें तो r ही चाहिए, ओके, हमें तो r ही चाहिए। तो ये दो इक्वेशंस हैं। सो व्हाट वी डू इज r को एलिमिनेट नहीं करना है, r को एलिमिनेट नहीं करना है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मल्टीप्लाई देम, okay, we'll multiply 1 and 2, so 1 into 2 implies r into r is r square is equal to 4 into 4 is 4 square, h1 h2
H1 H2 और tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा होता है 1 by tan थीटा, तो tan थीटा कॉट थीटा विल कैंसिल आउट। ओके, सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जाएगा, 4 का स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट और अंडर रूट ऑफ H1 H2 बच जाएगा। So r is equal to 4 times under root of H1 H2, which is here option 3. Okay, option 3. Let's move on to question number 21. An elastic spring of unstretched length L and force constant K is stretched by a small length L. Small length L. It is further stretched by another small length Y. Further stretched by Y. That means total stretching जो होगी, टोटल स्ट्रेचिंग जो होगी, पहले जो स्ट्रेचिंग थी x प्लस जो अब स्ट्रेचिंग हो गई y। ओके, ये स्प्रिंग ऐसे है, इसकी नेचुरल लेंथ यहां तक है, आपने इसको एक्सटेंड किया बाय x1, तो यहां से लेके यहां तक x1, फिर आपने इसको एक्सटेंड किया फर्दर बाय y, तो टोटल एक्सटेंशन होगा यहां से यहां तक, विच इज x plus y is the total stretching. The work done in the second stretching is, okay, second part में हमें देखना है कि work done जो है वो किसके बराबर होगा, work done जो है वो किसके बराबर होगा। Okay, work done by applied force हमें पता है is delta U, which is UF minus UI. UF. अब स्प्रिंग वाला केस है तो पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 k x square, x is the extension. दूसरे वाले केस में फाइनली एक्सटेंशन जो है दैट इज x plus y, तो x plus y whole square माइनस इनिशियल जो है वो बन जाएगा 1/2 k, इनिशियल स्ट्रेचिंग इज x, तो 1/2 k x square, 1/2 k x square. So W applied is equal to 1/2 k को कॉमन में ले रहा हूँ, 1/2 k को मैं कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बच गया x plus y whole square, x plus y whole square, तो ये बन जाएगा x square plus y square plus twice xy, और फिर साथ में यहाँ पर माइनस x square, रिमेंबर हाफ k को पहले ही बाहर निकाल दिया है, x square and x square cancels out, so this implies W applied is equal 1/2 k, यहाँ y एक कॉमन ले लें, y अंदर y स्क्वायर है, एक बाहर निकाल दिया तो एक बच गया, प्लस 2xy तो आपने बाहर निकाल दिया, तो वर्क डन जो होगा दैट विल बी 1/2 ky टाइम्स y plus 2x, 1/2 ky टाइम्स 2x plus y, 2x, ये 2x plus y या फिर y plus 2x एक ही बात है। ओके, एक ही बात है। सो 21 हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 22. A particle moves with velocity 5i minus 3j plus 6k meter per second. So this is the initial velocity of the particle. Under the influence of a constant force, ये constant force है, the instantaneous power applied to the particle is, power हमें पता है is F dot V. तो F दिया हुआ है, V दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, x कंपोनेंट 10, x कंपोनेंट 5, तो 5 into 10 is 50, 5 into 10 is 50. Let me erase this here. 5 into 10 50, फिर 10 और -3 is -30, plus 20 into 6, 6 into 2 is 12, so 120 बन जाएगा. This 50 minus 30 is 20, 20 plus 120 is 140 watt. सब कुछ ऐसे सिस्टम में था तो ये भी ऐसे सिस्टम में आएगा, 140 watt is option 3. Okay, is option 3. Let's move on to the next one now. 23. The potential energy for a conservative system is given by U. Potential energy के लिए equation दी गई है, where A and B are positive constants. The law of force governing the system is, potential energy और force के बीच में आपको relation पता होनी चाहिए, F is equal to minus times du by dx, minus times du by dx. So this is minus times, अब इसकी differentiation करनी है with respect to x, मैं सीधे ही कर लूंगा, A तो ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन, डोंट फॉरगेट दिस माइनस साइन, ए तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन जो है वो 2x, माइनस बी ऐसे ही, एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 ही है, तो ऐसे ही रहेगा, तो माइनस अंदर ले लें,
ये प्लस बन जाएगा तो उसे मैं पहले लिखूंगा b, ये माइनस बन जाएगा तो उसे बाद में लिखते हैं -2ax। तो b -2ax is the force involved. F is equal to b -2ax. F is equal to b -2ax. Option 3. Option 3. Okay, so let's move on to the next one, 24. At what depth will the weight of a body becomes 1/4 its weight on the surface? जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 बन जाएगी, 1/4 यहाँ 1/4 बन जाएगी, वहीं पर एक्सेल वेट भी जो है वो 1/4 बन जाएगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d मस्ट बी 1/4 एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमें बताना है कि डेप्थ जो है वो किसके बराबर है। फॉर्मूला याद करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एट डेप्थ d, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस टाइम इज 1 - d डिवाइडेड बाय r। ओके, अब gd जो है दैट इज gs डिवाइडेड बाय 4, gs डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू gs टाइम्स 1 - d डिवाइडेड बाय r, d डिवाइडेड बाय r। gs and gs cancels out, तो यहां पर 1/4 बच गया। 1/4 इज इक्वल टू 1 - d बाय r। दिस इंप्लाइज d बाय r को यहां लाते हैं तो प्लस बन जाएगा, इज इक्वल 1 - 1/4 को उधर लेते हैं तो माइनस बन जाएगा। 4 - 1 is 4 - 1 is 3, 3 divided by 4, so d divided by r is equal to 3 divided by 4, which implies d is equal to 3/4 times r। Okay, 3/4 times r। अब r याद करें is 6400 kilometers, so 3/4 into 6400 kilometers, 6400 kilometers। अब कैंसिलेशन देखें कि क्या होगा। 4 into 1 is 4, 2 बच गए। 4 into 6 is 24, 0 and 0, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 6 into 3 is 18, 3 into 1 is 3 plus 1 is 4, so 4800 kilometers। 4800 kilometers is option 1, option 1। So this is 24, 25 now, 25. The motion of a particle m is given by y is equal to ut plus half at square, half gt square. The force acting on the particle is, इसको जरा उससे कंपेयर करें। s is equal to ut plus half at square. So s is the displacement, which is in this case y. ut ऐसे ही है, हाफ ऐसे ही है, t square ऐसे ही है, a के बदले में g है। The acceleration involved is equal to g. That means force involved is equal to mg. Mass into acceleration, force होता है mass into acceleration, acceleration g है तो net force जो होगा that will be mg, that will be mg। Okay, so option 1. Let's move on to the next one, 26 now. Okay, 26. Two resistors of resistance R1 is equal to 200 plus minus 0.4 ohms and R2 equal to 100 plus minus 0.3 ohms are connected in series। Equivalent जो है वो क्या होगा? Equivalent will be, पहले तो values को add कर लें। 200 plus 100 is 300 प्लस माइनस यहाँ पर एरर्स जो है वो भी ऐड होते हैं। 0.4 प्लस 0.3 इज 0.7, सो 300 प्लस माइनस 0.7, ये यहाँ पर गलती हो गई है। दिस इज अ टाइपिंग एरर, दिस इज 0.7 ओम, 0.7 ओम। ओके, तो अगर वो करेक्शन हम कर लेंगे देन इट्स ऑप्शन 2। वैसे समझ में आना चाहिए क्योंकि बाकी कोई रेलेवेंट नहीं है, तो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो 0.7 जो है वहां पर होना चाहिए। सो 300 प्लस माइनस 0.7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। A physical quantity x is calculated as x is equal to a cube b to the power 1 by 2 divided by c2 square d to the power 1 by 3. If the percentage errors in A, B, C, and D are 3%, 2%, 1%, 3% respectively, the percentage error in X is, X का formula ये आपके पास है। So percentage error delta X by X is equal to A cube, तो ये बन जाएगा 3 times delta A by A plus B to the power 1 by 2, तो बन जाएगा 1 by 2 B delta B by B plus C का स्क्वायर है
तो वो बन जाएगा ट्वाइस डेल्टा सी बाई सी प्लस डी का पावर 1/3 है तो 1/3 डेल्टा डी बाई डी। आई होप दिस इज फाइन। अब डेल्टा ए बाई ए जो है दैट इज 3% प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी जो है दैट इज 2% ट्वाइस डेल्टा सी बाई सी जो है दैट इज 1%, 1/3 डेल्टा डी बाई डी जो है दैट इज 3%। This implies delta x by x is equal to 3 into 3 is 9%, plus 2 and 2 will cancel out to 1%, plus 2 into 1 is 2%, plus 3 divided by 2%, which is 1.5% basically. Okay, 1.5. नहीं, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 3 है, मैंने 2 क्यों लिखा है? 3 है, 3 and 3 will cancel out तो 1 बच जाएगा। Okay, 1 बच जाएगा। So last one is 1. Last one is 1. Last one is 1. Uh-oh, what did I do? Okay, here it is. Last one is 1. So 9 plus 1 is 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus 1 is 13%. So X में जो error होगा that will be 13%, which is option 3. Okay, option 3. Let's move on to the next one, 28. 28. A man is walking on a level road with a velocity 8 meters per second and raindrops are falling vertically with a velocity of 6 meters per second. Find the relative velocity of rain with respect to man at what angle with the vertical. Man has to hold his umbrella. Okay. ये man है. Okay. ये man है. Walking at 8 meters per second, walking this way. This is velocity of man with respect to ground, जो किसके बराबर है magnitude wise 8 meters per second. Raindrops are falling vertically. Raindrops are falling vertically. तो ये raindrops are falling vertically. So velocity of rain with respect to ground vertically. और जिसका value जो है वो 6 दिया गया है. So this is 6. This is 8. Find the relative velocity of rain with respect to man. Velocity of rain with respect to man is velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground, या फिर velocity of rain with respect to ground plus minus velocity of man with respect to ground. तो VMG का उल्टा लेना है, माइनस लेना, नेगेटिव लेना, तो इस साइड से ये है माइनस VMG. माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो वही 8 रहेगा, डायरेक्शन जो है वो रिवर्स्ड है. ओके, डायरेक्शन जो है वो रिवर्स्ड है. अब हमें बताना है कि मैन के हिसाब से इनकी वेलोसिटी जो है, रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी वो किसके बराबर है. यहां से हमें पता चल रहा है कि वो इन दो का रिजल्टेंट है, ये वेलोसिटी, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है. तो VRM वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, एक का मैग्नीट्यूड 6 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड जो है 8 है. 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, वो बन जाएगा 100. अंडर रूट ऑफ 100 इज 10. So velocity of raindrops with respect to man is 10 meter per second. सब कुछ SS सिस्टम में लिया है तो ये भी SS सिस्टम में होगा 10 meter per second. Now what is the angle? What is the angle? ये एंगल हम देखते हैं. Okay, ये एंगल हम देखते हैं. This angle here. ये 8 है, ये 6 है. Tan of phi, let's call this phi, is perpendicular divided by base. 8 perpendicular opposite side, 6 जो है वो base है. So this is 2 into 3, 2 into 4, 4 divided by 3, 4 divided by 3. याद करें 3, 4, 5 right angle triangle, 3, 4, 5. 5 और 3 के बीच में एंगल जो है वो 53 डिग्री हो रहा है, दूसरा है 37 degrees. So यहाँ पर 4 and 3 जो है, 4 is perpendicular divided by 3 is base, so 53 degrees. Phi is equal to 53 degrees. Phi is equal to 50. So magnitude of velocity of raindrops with respect to man is 10 and angle is 53 degrees. So option 2. Option 2. Chale, so this was question number 28. Let's move on to the next one now. 29.
Okay, 29. If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then as per the parallelogram, the resultant is given by longer diagonal, shorter diagonal, when angle is acute, when angle is obtuse, any of the two, fine. ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, parallelogram complete. बड़ा डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट है. द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द टू इनिशियल पॉइंट्स. और यहां पर देखें कि एंगल जो है वो एक्यूट है, तो ये वाला तो ठीक स्टेटमेंट है. ये वाला जरा चेक कर लेते हैं. ये तो A है, ऑब्ट्यूज एंगल, अब B ये मैं ले रहा हूं, ये ऐसे बन जाएगा. डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द टू इनिशियल पॉइंट्स, तो वो ये है. दिस इज योर रिजल्टेंट R. तो यहां पर देखें अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो डायगोनल जो है वो कम हो गया है, वो कम हो गया है, तो मैग्नीट्यूड कम होगा. शॉर्टर डायगोनल व्हेन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड लॉन्ग डायगोनल व्हेन एंगल इज एक्यूट. तो ये दो हैं, तो इसका मतलब बोथ 1 and 2, both 1 and 2. Okay, so let's move on to the next one now. 30. A block of mass 5 kg is suspended by a massless rope of length 2 meters from the ceiling. A force of 50 Newton is applied in the horizontal direction at the midpoint of the rope, as shown in figure. The angle between the made by the rope with the vertical in equilibrium is. Okay, आसान है, बहुत ही आसान है. इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 5G, which is 50 न्यूटन्स. 50 न्यूटन. तो यहां पर इस रस्सी में भी 50 न्यूटन होगा. T is equal 50 न्यूटन. यहां से तो 50 न्यूटन है ही, यहां से कुछ फोर्स होगा T. ओके, यहां से कुछ फोर्स होगा T. अब ये वर्टिकल के साथ लेट्स सपोज एंगल थीटा बना रहा है. ओके, एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट विल बी T, इसको T प्राइम लिखते हैं, T cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल जो बनाएगा दैट इज T sin थीटा. T cos theta and T sin theta. अब T sin theta must be equal to 50. So T sin theta is equal to 50. और वर्टिकल डायरेक्शन में T cos theta is equal to 50. T cos theta is equal to 50. This implies divide कर लें दोनों को, तो tan of theta, T and T will cancel out, sin by cos is tan. Tan of theta is equal to 50 by 50 is 1. This implies theta is equal to 45 degrees. थीटा 1 के बराबर कब होता है? जब एंगल जो होगा वो 45 डिग्रीज के बराबर होगा. Let's move on to the next one now. A block of mass m is m rests on a rough inclined surface. The coefficient of friction between the surface and the block is mu. The what is the angle of inclination of the plane to the horizontal? Will the block just start to slide down the plane? So ये अगर angle of inclination theta है, there is some block here, there is some block here. जब इस स्लिप करने के अबाउट होगा, that angle is what we call as angle of slipping, angle of sliding. और उसके लिए इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, tan of theta is equal to mu s. So this implies theta is equal to tan inverse of mu s, tan inverse of mu s. Option 1. 32. 1 centimeter main scale of vernier caliper is divided into 10 divisions. The least count of the caliper is 0.005 centimeters. Then the vernier scale must have. 1 सेंटीमीटर को 10 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है दैट इज 1 मिलीमीटर, या फिर 1/10 centimeters, 0.1 centimeters. Okay, 0.1 centimeters. Let's suppose there are n vernier scale divisions. So n vernier scale divisions are equal to n minus 1 main scale divisions. ये तो होता है basic principle. जितने भी वर्नियर स्केल डिविजन्स होते हैं वो खुद से कम एक नंबर से कम मेन स्केल डिविजन्स के बराबर होते हैं.
तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा दैट इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय n मेन स्केल डिविजन्स, और मेन स्केल डिवीजन क्या है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लीस्ट काउंट दिया हुआ है, हमें बताना है वर्नियर स्केल के डिविजन्स कितने, यानी कि ये n हमें निकालना है। ओके, ये n हमें निकालना है। अब लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन minus 1 vernier scale division, 1 main scale division minus 1 vernier scale division. So this implies least count आपको कहा गया है 0.05 सेंटीमीटर्स, मैं मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, हाँ मिलीमीटर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.05 मिलीमीटर से बन जाएगा। 1 main scale division is 1 millimeter. 1 vernier scale division is n-1 divided by n into main scale division, which is 1 millimeter. So this is also in millimeters. Multiply by 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ मिलीमीटर्स में है, तो सब कुछ अब कंसिस्टेंट है। So this implies n-1 divided by n को यहाँ लाते हैं तो प्लस बन जाएगा, n-1 divided by n is equal to 0.05 को यहाँ लेते हैं, ये बन जाएगा 1 minus 0.05, 1 minus 0.05, 1 minus 0.05 is 0.95. So this implies n-1 is equal, n को ऊपर लेते हैं 0.95 times n, इसे यहां लाते हैं 1 माइनस, यहां पर तो 1 है ना, 1 माइनस 0.95 is 0.05 n, 0.05 n, और -1 दूसरे साइड से आएगा तो +1 बन जाएगा। ओके, +1 बन जाएगा। सो दिस इंप्लाइज, यहां पर मैं लिखता हूं n is equal to 1 divided by, what did it do, let's take it here, 1 divided by 0.05, which is ये बन जाएगा, हाँ 100 ऊपर आएगा, 100 divided by 5 is 20 divisions, 20 divisions। तो वर्नियर स्केल के 20 डिविजन्स हैं, 20 डिविजन्स ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2, बस ये आपको पता होना चाहिए कि n जितना भी फिर n होगा, n वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल n-1 मेन स्केल डिविजन्स, ये बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। Okay, let's move on to the next one. 33. Okay, 33. A mass of 1 kg is suspended by means of a thread. The system is part 1 lifted up with an acceleration of 4.9 meter per second. Then part 2 may lowered with an acceleration of 4.9 meters per second squared. 4.9 ध्यान दें is g divided by 2. 9.8 divided by 2 वो बन जाता है 4.9। okay, so g divided by 2 हम इसको लिखेंगे। the ratio of tension in the first and the second case is, okay, the ratio of the tension in the first and second case is, ये कोई एलिवेटर, ये यहां से टेंशन T, पहले केस में एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड है, किसके बराबर, g divided by 2, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो बन जाएगी g plus g by 2, g plus g by 2, which is 3 by 2 times g, 3 by 2 times g, okay, 3 by 2 times g। फिर ये तो है केस 1 जहां पार्टिकल जो है ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहां पर t किसके बराबर होगा, m into 3 by 2g, mg इफेक्टिव बेसिकली, so this is 3 by 2 times mg, ये t1 केस 1 में, ओके, केस 1 में। केस 2 में, what did I do, केस 2 में नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन g by 2 डाउनवर्ड, तो इफेक्टिव g जो होगा, g इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल टू g minus g by 2, which is 2 minus 1 is 1, 1 by 2 times g, या simply g divided by 2, ओके जी। सो t किसके बराबर होगा, यहाँ पर t will be equal to mg divided by 2, mg divided by 2, this is tension in the second case। हमें इन दो का रेशियो निकालना है, ओके, इन दो का रेशियो हमें निकालना है,
रेशियो निकालते हैं, T1 divided by T2 is equal to, T1 is 3 by 2 times mg, 3 by 2 times mg, divided by T1 is mg divided by 2. mg divided by 2, mg divided by 2 cancels out to 3 बच गया, which is 3 is to 1. 3 is to 1. Okay, 3 is to 1. कौन सा ऑप्शन है? Option 1. Option 1. 3 is to 1. Let's move on to the next one now. Okay, V1 and V2 are the velocities, instantaneous velocities of M1 and M2 respectively, and angle A is 2 theta. Then, okay, theta के लिए हमें equation बतानी है कि क्या है. M2 जो है, let's suppose it's moving down with a velocity of V2. M1 जो है, it's moving up with a velocity of V1. तो ये पुली जो है, ये भी ऊपर जाएगी with velocity V1. Okay, velocity V1. Let's suppose this thing is X here. तो ये भी x होगा. Okay, ये दोनों साइड से A to O is x, A to O is x, और O to B is also x. O to B is also x. Let me erase this part here. Okay. Fine. Now, let's say this height O to C, यहां से लेके यहां तक is h. अब पुली ऊपर आ रही है तो h जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो dh by dt जो होगा दैट इज स्पीड. बेसिकली मैं माइनस साइन से लिखूंगा क्योंकि h जो है वो डिक्रीज हो रहा है. अच्छा, अगर ये x है और ये h है, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो यहां से भी होगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. लेट्स सपोज यहां पर l है और L जो है वो इंक्रीज होगा, यहां से लेंथ जो है वो कम हो रही है, L इंक्रीज होगा, तो dL by dt जो है दैट्स इक्वल टू V2. That is equal to V2. Okay, that's equal to V2. Now, अब जाके टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को जरा देख लें. टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये ट्वाइस बन जाएगा, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस यहां से ये जो L है. Now this length is must be constant. This length must be constant. Differentiate कर लें with respect to time, तो ये बन जाएगा 2 तो है ही वहां पर, रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का बन जाएगा 1 by रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ओके, 1 by रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 by 2 रूट, बेसिकली 1 by 2. फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन, h की आ जाएगी 2h into dh by dt, x की 0 बन जाएगी क्योंकि x जो है वो कांस्टेंट है, प्लस L की होगी dL by dt is equal to 0. So this implies 2 and 2 cancels out here. ये 2 h divided by under root of h square plus x square. यहां से देख लें h divided by under root of h square plus x square. डायग्राम में देख लें, डायग्राम में, लेट मी चेंज कलर. ये h divided by under root of h square plus x square, under root of h square plus x square, वो जो है ओके, सो h divided by under root of, ये बन जाएगा यहां पर base divided by hypotenuse, so that is cos of theta. So cos of theta. फिर जाके ये 2 और h आ गया, ये भी आ गया, dh by dt is minus v1 plus dl by dt is v2 is equal to 0. So this implies, अब ये नेगेटिव आ गया, इसे दूसरे साइड से ले ले, ये पॉजिटिव बन जाएगा. So twice v1 cos theta is equal to v2. So cos of theta is equal to v2 divided by twice v1, implies theta is equal to
cos inverse of V2 divided by twice V1. Okay, so cos inverse of V2 divided by twice V1. Cos inverse of V2 divided by twice V1. Option 1. Okay, option 1. Let's move on to the next one. 35. If the angle between vector A and vector B is 120 degrees, then modulus of A unit vector plus B unit vector is equal to A unit vector की direction जो है that is same as A vector. B unit vector की direction जो है that is same as B vector. तो A और B के बीच में जो एंगल 120 डिग्रीज है, A यूनिट वेक्टर और B यूनिट वेक्टर के बीच में भी एंगल जो है वो 20 डिग्रीज है. बाकी मैग्नीट्यूड इसका 1 के बराबर है, इसका भी 1 के बराबर है और एंगल जो है वो ये है. तो रिजल्टेंट आपको देखना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें पता है इज अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos of theta. यहां पर जिन दो को आपका रिजल्टेंट निकालना है दैट इज a यूनिट वेक्टर एंड b यूनिट वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड 1 है. तो 1 square is just 1 plus 1 square is 1 plus 2 into 1 is just, or then cos of theta is 120, theta is 120, cos of 120 degrees. So this is under root of 1 plus 1 is 2 plus 2 into 1 is 2. Cos of 120 is minus 1 by 2. 2 and 2 cancels out. So this is under root of 2 minus 1 is 1. This implies R is equal to 1. R is equal to 1. Vectors में वैसे अगर आपको directly पता हो दो इक्वल वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, उनका रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर होता है. तो ये दो इक्वल थे, मैग्नीट्यूड 1 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन्हीं के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1. 120 डिग्री पे ऐसा होगा, लेकिन अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होंगे तब. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. 36. A particle starts from x equal to 0, from rest. तो दो चीजें पहले ही आ गई. स्टार्ट कहां से कर रहा है? x equal to 0 से. Starts from x equal to 0 at rest. तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है. ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है. With a uniform acceleration, तो a is constant. A is constant. ग्राफ्स दिए हुए हैं तो v का स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. Straight line. Velocity time graph will be a straight line. वो भी यहीं से पता चल गया. Identify all figures that correctly represent the motion qualitatively. A is acceleration, V is velocity, X is displacement, T is time. पहले जरा C को देख लें. C में पार्टिकल जो है that is not starting from x equal to 0. तो C वाला ग्राफ सीधे ही गलत. Okay, C वाला ग्राफ सीधे ही गलत. Acceleration is constant, that means acceleration time graph जो होगा वो horizontal होगा, तो ये ठीक करो है. Velocity time graph is a straight line curve, तो वो भी ठीक है. X versus T is parabolic, quadratic function होगी, तो वो भी ठीक है. तो A, B, C are correct. A, B, C are correct. Option 1. Okay, option 1. A, B, C are correct. हमें करेक्ट कहना है कि इनकरेक्ट कहना है? आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ. ओके, सो ए बी एंड डी, नॉट सी. सी तो गलत है, सी तो गलत है. ओके ओके, सॉरी, सी तो गलत है, सी तो गलत है. ये डी वाला ठीक है. तो ए बी एंड डी आर करेक्ट वंस. ए बी एंड डी आर करेक्ट वंस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. 37. A car of mass m is moving on a level circular track of radius r. If mu s represents the coefficient of static friction between road and tires, this must be and tires of the car, the maximum speed of the car, ये तो सीधे ही फॉर्मूला है. लेवल रोड पे मैक्सिमम स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, या म्यू एस टू बी मोर प्रिसाइज, म्यू एस आर जी. ऑप्शन 4. तो ये तो सीधे ही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. The least count of the main scale of a screw gauge is 1 millimeter.
okay, is 1 millimeter. The minimum number of divisions, on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire is. Okay, minimum number of divisions on its circular scale. So minimum length जो हमें measure करनी है, that is 5 micrometers. That's when minimum number will be there. Minimum number of divisions on the circular scale. So minimum जो है length हमें measure करनी है वो 5 micrometers के बराबर है. 5 micrometers के बराबर है. Least count of the main scale is 1 millimeter. That means pitch is 1 millimeter. So this is pitch. Pitch of the screw gauge is 1 millimeter. The minimum number, okay. Least count जो है, that is pitch divided by total number. Pitch divided by total number. और यही जो है 5 micrometers के बराबर आना चाहिए. This is the least length which can be measured. Least count होता है least length that can be measured. और वो इस केस में 5 micrometers के बराबर है. So 5 into 10 to the power minus 6. Pitch जो है that is 1 millimeter. So that's 10 to the power minus 3 divided by n is equal to 5 into 10 to the power minus 6. So n ऊपर. So 10 to the power minus 3 divided by 5 into 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6 ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 10 to the power 3. 6 minus 3 is 3 divided by 5. That is 1000 divided by 5. 5 into 2 is 10. So 200 n is equal to 200 divisions. Okay, n is equal to 200 divisions. N is equal to 200 divisions. This is 38. Now 39. 39. While walking on ice, one should take small steps to avoid slipping. This is because smaller steps ensure. Okay. So this is a bit controversial. Bigger steps. Okay, bigger steps. Ye bigger step. In comparison to this bigger step, let me show your eyes and your arms. In comparison to your bigger steps, smaller steps. Okay, now note. जैसे कि मैंने कहा, this is a bit controversial one. Controversy है नहीं, बस बनाई है उसमें. यहाँ पर जो आपका force horizontal component आएगा ground पे वो ज्यादा होगा. This will be larger. यहाँ पर जो आपका horizontal force आएगा वो कम होगा. तो यहाँ पर जो static friction की जरूरत होगी वो ज्यादा होगी. ज्यादा static friction की जरूरत होगी. यहाँ पर जो static friction की जरूरत होगी वो कम होगी क्योंकि कम force है तो static friction की भी जरूरत कम होगी. Static friction की भी जरूरत. So small step लेने से friction required जो होगी वो कम होगी. Smaller friction is required. Okay, smaller friction is required. So some of you may tell you that smaller friction is the correct answer, or unfortunately कि मैं भी वैसा ही है, but I disagree with that. Now इसमें असल चीज जो है safety हमें देखनी है. Okay, we have to look for the safety basically. Why do we take this measure? For the safety measure. We don't want to slip. हम स्लिप नहीं होना चाहते हैं, हम गिरना नहीं चाहते हैं, तो सेफ्टी के लिए हम स्मॉलर स्टेप्स लेते हैं. सेफ्टी में आप देखेंगे कि एफएस मैक्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका क्या होना चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए. ओके, वो इंक्रीज होना चाहिए. स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होना चाहिए तो फ्रिक्शन इंक्रीज होना चाहिए. तो वो बात अगर आप जहन में रखेंगे तो ये इसका ऑप्शन होगा, लार्जर फ्रिक्शन. तो वो यहां पर कैसे है, जब आपने यहां पर पैर डाल दिया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कम हो गया लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज्यादा बन जाएगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होगा, वर्टिकल